Ji, Bismillahirrahmanirrahim. I think we are five participants at the moment. Let us start with the session. In the name of Allah, the most magnificent, the most merciful. Allahumma salli ala Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sallam taslima. Is my voice is audible to you, please? Yes, sir, you are audible. Okay, yeah. So I always tribute all my educational activities, workshops, seminars, presentations to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from which we derive all sort of inspiration. And in the start of this presentation, I pray to Almighty Allah to help the victims of Palestine war. हमारे वो लोग जो इस वक्त गजा के अंदर बड़ी तकलीफ में हैं और सहूनी बर्बरियत का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनको उनको गैब से मदद दे और हमें मुत्तहिद करे और इस्लाम का और मुसलमानों का इकबाल इस दुनिया के अंदर बुलंद करे। डेफिनेटली द बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत बहुत ही अनबैलेंस्ड है दोनों साइड पे। और अभी भी मेरे सामने जो बड़ी स्क्रीन के ऊपर बैक साइड पे वो चल रहा है सारा सिनेरियो, तो हम यही दुआ करते हैं और हम यही कर सकते हैं फ़िलहाल यहाँ बैठ के कि हम अल्लाह से दुआ करें, इनकी जितनी भी हेल्प की जा सकती है, मदद की जा सकती है, वो की जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन नाउ। ये सेशन जो है मुझे प्रोफेसर जुनैद सरफराज साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी ऑन असेसमेंट एंड evaluation. Assessment and evaluation is a very comprehensive topic और ये बड़ा part and parcel है in medical education, because assessment is very important. आपका जितना भी educational activities और instructional strategies हैं, they are finally based on the type of assessment tool you are using and how you are making your assessment reliable and valid. So let us start with the first presentation. Before going into details, मैं learning objectives आपके साथ share कर लूँ, and that is कि हम लोग पहले characteristic of good examination के बारे में discuss करेंगे. Then I will talk about the MCQs, and I will talk about OSCE, and I will just give you flavor of item analysis, and finally the online assessment जो आजकल हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन असेसमेंट करते हैं. So I will try to cover these in this 2 or 3 hour session, and in between I will park down my presentation for a question answer session. I will give you time for any question and we will have a mutual discussion with each other. On the other hand, you can stop me or you can just tag your messages and I will keep on checking them, and I will try to answer them even during the due course of my presentation. So there will be two types of interaction. One is during the session, which will be taken up by your messages and in the chat box. And second, that I will give you time at the end of each session, each presentation. So we will have a comprehensive discussion in this regard. Basically, I am a professor of urology and working here in the Services Institute of Medical Sciences, Lahore. And I'm also heading as a Director General, Punjab Human Organ Transplantation Authority. So let us start with the first session, and that is the characteristic of good examination. Whenever we are going to formulate an exam, there are certain points which must be taken into account, and on those characteristics, if exam is based, your exam become aligned with your contents and with your course and with your curriculum. So these characteristics are validity. I'm going to repeat it because most of you are medical educationists or becoming to be a medical educationist, and you will be more familiar with this term in almost all sort of session in medical education, but they need to be elaborated in different forms. So the first character of a good examination is validity. Second is the objectivity.
the third is the reliability, and the fourth is the feasibility. So ये चार चीजें हैं जिनको आपने अपने सामने रख के एग्जामिनेशन को फॉर्मुलेट करना है, चाहे वो यूएचएस का एग्जाम है, चाहे वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, चाहे वो सीपीएसपी का एग्जाम है। वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी जो है वो अगर हायर लेवल की होगी और तो वो एग्जाम जो है वो रिलायबल भी काउंट किया जाएगा, वैलिड भी काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सो लेट अस डिस्कस एवरी पॉइंट वन बाय वन है। क्या इज द एग्जामिनेशन मेयरिंग व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेयर? एक क्वेश्चन बड़ा है कि क्या ये एग्जाम जो हम ले रहे हैं क्या हमारे कोर्स कंटेंट को उसको मेयर कर रहा है? द कंटेंट ऑफ द असेसमेंट आर द राइट थिंग टू बी टेस्टेड। यानी हमने पढ़ाया तो उन्हें फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1 है, लेकिन असेसमेंट हमने चैप्टर 2 से ले ली है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड एग्जामिनेशन, क्योंकि वो कंटेंट ही नहीं है। या हमने पढ़ाया तो उनको सील 1 लेवल का था, हमने सिर्फ उनको नॉलेज दी है और हमने सारे क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज के और एससीक्यूज के हम लोगों ने वो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के डाल दिए, तो ये भी कंटेंट वैलिड नहीं है। ये कि जब आपने पढ़ाया ही एनालिसिस एंड सिंथेसिस का नहीं है, सिनेरियो बेस्ड एंड प्रॉब्लम बेस्ड नहीं पढ़ाया आपने, then why you are assessing in such a high cognitive order? इसी तरह the fact of learning are the students what we want them to learn? दूसरा ये है कि क्या जो हम assess कर रहे हैं क्या हम समझते हैं कि ये ट्रू असेसमेंट है इन बच्चों की, इस लेवल की होनी चाहिए जी? और फैक्ट ऑफ लर्निंग क्या आ रहा है इस असेसमेंट से कि जब हमने पढ़ाया है उसके बाद जो हमारी असेसमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है, असेसमेंट डिराइव्स लर्निंग, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी एफर्ट्स को जो हमने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में और हमने डिफरेंट मोड्स में यूज किए while we were teaching and imparting knowledge to the students. And the assessment methods, are we using the most appropriate method for the, क्या हम जो यूज कर रहे हैं क्या वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? जैसे कि मैंने 2 हफ्ते के लिए सब क्लेवियन कैथेटर की ट्रेनिंग दी है स्टूडेंट्स को, या मैंने एक एक 7 डेज का कोर्स करवाया है फाइनल ईयर को for putting a Foley catheter, putting a percutaneous nephrostomy और putting a suprapubic catheter। और जब मैंने असेसमेंट ली है तो मैंने सारी जो है वो कंटेंट बेस्ड ली है, मैंने उसके अंदर कोई भी साइकोमोटर स्किल्स असेस ही नहीं की। तो द असेसमेंट मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो अप्रोप्रिएट नहीं है इस टीचिंग के लिए जो मैंने डिवाइस की थी, या इस करिकुलम के लिए, या इस कोर्स के लिए जो जिसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिवाइस किए थे। दे आर नॉट कंटेंट स्पेसिफिक। what is validity? In other words, it is the degree to which the test truly measures what it is intended to measure. Exactly वही measure कर रहा है जिसको हम measure करना चाहते हैं। इसकी different forms हैं, जैसे कि जो validity है वो improve कैसे की जाती है। पहले तो इसकी हम how you improve the validity of a tool, of an assessment tool। हमें अपने करिकुलम को डिफाइन करना पड़ेगा, कंटेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना पड़ेगा, तो फिर हमारी वैलिडिटी इंप्रूव होगी। अगर हमारे देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स कि लोग जब यहाँ पर इंस्पेक्टर्स आते हैं किसी भी कॉलेज की या इंस्टीट्यूशन की एक्रेडिटेशन के लिए और उसको फिर सर्टिफिकेशन देते हैं, आइदर इट्स एन आईएसओ सर्टिफिकेशन और इट इज अ बेल सर्टिफिकेशन, तो उसके अंदर ये सारी करिकुलम की चीजें देखते हैं और फिर उनके एग्जामिनेशन टूल्स को देखते हैं, आर देयर अलाइंड विद द करिकुलम और द सिलेबस है। तो जब हमारे पास कंटेंट डिफाइंड होंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होंगे, तो हमारा जो असेसमेंट टूल है वो भी उनके साथ अलाइन होगा, तो वी कैन हैव अ वेरी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन टू द इंस्पेक्टर्स के लिए हमारा जो यहाँ पर सिस्टम है दैट इज टोटली अलाइंड। Otherwise, they will get easy information from the curriculum and contents and the examination tools that this whole of system is disaligned and it is not aligned with with the input and with the processing. And then mapping exam content against the curriculum, ये वो मैपिंग करते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ एमसीक्यूज रखे थे, कितने इन्होंने ऑस्की रखे थे, कितने इन्होंने ओरल वाइवा के क्वेश्चन रखे हैं, कितने इन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट्स की है, और पीछे इनका जो करिकुलम है वो क्या कह रहा है, और ये परसेंटेज जब इन्होंने डिफाइन कर दी थी तो क्या इन्होंने असेसमेंट ऐसी की है। इसको कहते हैं मैपिंग ऑफ द एग्जाम कंटेंट अगेंस्ट द करिकुलम।
कि क्या ट्रू पिक्चर जो है वो मैप करके असेसमेंट की गई है या ये असेसमेंट जो है ये बायस्ड है। इसी तरह एम्फेसिस ऑन एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट करिकुलम कंटेंट, ये भी हमने करिकुलम में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में और असेसमेंट में डिफाइन करना होता है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया सप्लीमेंट्री हैं, ये एरियाज जो हैं ये हम जो है वो कुछ कंटेंट इसका लेंगे नहीं है, और ये एरियाज जो है वो डिफिकल्ट हैं लेकिन हमने इसके 10% कंपोनेंट अपने असेसमेंट टूल्स के अंदर रखने हैं। एंड देन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स सेलेक्टिंग appropriate method, defining the curriculum syllabus, mapping the exam contents, emphasis on the important curriculum contents, and then selecting the appropriate method. Types of validity क्या होती हैं ये जानने की, it's very important to know about the different types of validity. जैसे कि phased validity है, content validity, construct validity, predictive validity, and concurrent validity. So what is validity? Does not have a numeric value. Reliability की numeric values होती हैं. It is a judgment based on the above mentioned evidence. Let us come to the phased validity. It's very easy. आपने पेपर को देख के ही बता दिया है कि ये बायोकेमिस्ट्री का पेपर, आपने पेपर को देख के क्वेश्चंस को देख के बता दिया है कि ये क्वेश्चन सारे मैथमेटिक्स के हैं, आपने पेपर को देख के बता दिया है कि ये जो पेपर है ये हमारा फिजियोलॉजी का पेपर है। अब आपने पेपर को देखा, उसके अंदर 8 क्वेश्चन फिजियोलॉजी के थे, एक दो क्वेश्चन जो थे वो समवट एनाटॉमी से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उसकी फेस वैलिडिटी कम हो जाएगी। इसी तरह कंटेंट के हाउ वेल डज द सैंपल ऑफ द असेसमेंट टास्क रिप्रेजेंट द डोमेन टू बी मेजर्ड, इन अदर वर्ड इज द सैंपलिंग एडिक्वेट, यानी कि हमने जो कंटेंट्स पढ़ाए हैं और जिस तरह पढ़ाए हैं, हाउ वी हैव टॉट दोस कंटेंट्स, क्या हमारी अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग है उन कंटेंट्स की कि नहीं है। सो दिस इज कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि हमने तो उनको पढ़ाया था अपर लिम और लोअर लिम, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो एब्डोमेन के भी डाले हुए हैं, कुछ उन्होंने थॉरक्स की बोन के डाल दिए हैं, कुछ उन्होंने क्रेनियम की बोन्स के भी डाल दिए हैं, ऐड के दिए। तो ये कंटेंट वैलिड नहीं है, 100% वैलिड नहीं है ये। हमें तो जो कंटेंट टीच किया गया है, the content that has been taught to the student should be reflected in the assessment tool. So this is called content validity. Next come the construct validity. This is very important. Construct का मतलब ये है कि is this test actually assessing what I want to assess? What I taught in my teaching sessions were problem-based scenarios. They were of high cognitive levels like synthesis, like analysis, like interpretations. But I am assessing C1 level, just recall the knowledge. Or I have taught them vice versa, C1 level, just asking them what are the different names of the medicines which we can use in tuberculosis, what are the different names of drugs used in sepsis, and otherwise मैं उनको असेस कर रहा हूँ इन सिनेरियो बेस के, मैंने एक सेप्सिस का सिनेरियो दे दिया है, उसके बाद मैंने इंटरप्रिटेशन के लिए MCQs या SCQs कंस्ट्रक्ट कर दिए। So my construct is not aligned with what I have taught to the students. So that's why the curriculum, the syllabus, and the mapping of curriculum with the blueprinting of the assessment is very important in all the institutions. Then come the predictive validity है। अब इसकी भी कोई numerical value नहीं है, हम कैसे predict करेंगे कि ये जो टेस्ट है ये how well does the performance on this test predict performance in the future। जैसे कि आपने देखा होगा कि ATLS या USMLE के MCQs हैं वो दे आर वेरी हाई कॉग्निटिव ऑर्डर सिनेरियो बेस्ड, और उसके लिए बहुत डेप्थ में तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इन MCQs को पास करने के बाद वी कैन प्रेडिक्ट कि ये जो बच्चे हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह आपका जो टेस्ट है वो बड़ा ही लो कॉग्निटिव ऑर्डर का है, हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या इनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस, क्या वो अच्छी होगी या नहीं होगी। So the test also give us a snapshot in the future कि ये perform कैसे करेंगे बच्चे based on your test. So test की content, construct और face validity से भी लोग predict कर लेते हैं कि ये future performance कैसे होंगे। इसी तरह last में है that is the concurrent validity. This refer to the degree to which scores on a test correlate with the scores on an established test administered at the same time.
सो ये जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है, ये कुछ रिलायबिलिटी के साथ मैच करती है कि आप एक ही टेस्ट अगर जो है वो उसी फॉर्म का जो है वो बच्चों को देंगे, स्टूडेंट्स को देंगे, तो वो ऑलमोस्ट सेम स्कोर करेंगे। तो आपका जो टेस्ट है उसमें बहुत वेरिएशन नहीं होगी उसके कंटेंट और उसकी कंस्ट्रक्ट के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट है, ये अगर 2 या 3 फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि यूएचएस के अंदर देखा होगा आपने कि वो 2 या 3 पेपर्स बनाते हैं और दे आर ऑलमोस्ट बैलेंस्ड पेपर। लेकिन कई दफा ऐसे भी देखने में आया है, आपने देखा होगा कि बच्चे ये अक्सर कंप्लेन करते हैं जी कि जो मॉर्निंग सेशन पे जो पेपर आया है वो तो बड़ा आसान था, लेकिन जो इवनिंग सेशन पे आया दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो द कॉन्करेंट वैलिडिटी कम डाउन इन दिस कंटेंट्स। एक तो उन्होंने वर्बली कह दिया ना, लेकिन अगर हम इसको एग्जामिन करें तो एग्जामिनेशन के अंदर अगर मॉर्निंग और इवनिंग का स्कोर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। बच्चे जो है मॉर्निंग के उन्होंने अच्छा स्कोर किया है इन 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 मैट्रिक और इन एफएससी और इन एमबीबीएस, और इवनिंग सेशन के बच्चों ने बड़ा लो स्कोर किया बिकॉज ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट पेपर। तो इसकी जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है वो क्वेश्चनेबल। सो देयर आर different types of validity. So one is the phase, one is the content, one is the construct, and one is the predictive, and then is the concurrent validity. So how can you make the exam objective? An exam is objective if the acceptable answers to the questions is defined prior to its administration. आपने देखा होगा कि जब से ये ओरल वाइवा जो है ये खत्म हुआ है, या ओरल डिस्कशंस जो है वो लोगों ने बाहर के मुल्कों ने खत्म कर दी हैं। दे आर मोर मूविंग टुवर्ड्स ऑस्की, ऑस्पी, ऑस्टी, टॉक्स, एमसीक्यूज, स्ट्रक्चर्ड एमसीक्यूज, एंड देन ऑस्लर। इवन के जो लॉन्ग केस है, वी कॉल इट एन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड वाइवा होता है। उसके अंदर उन्होंने कंपोनेंट टाइम दे दिया है। इवन कि आप जब जाएं एफआरसीएस के एग्जाम के अंदर, तो वहां पर 8 स्टेशन होते हैं, देयर आर 2 एग्जामिनर्स ऑन ईच स्टेशन, and there is a 20-minute session in each station. So 8 station with 20-minute session and 10 minutes for each examiner. और वहां पर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट वहां पर टॉक्स के स्टेशन होते हैं, एंड देयर इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। यानी कि दे हैज टू रोटेट अमंग 16 एग्जामिनर्स, 2 एट ईच टेबल, एंड देयर आर ऑलमोस्ट 16 सिनेरियोज, और 10 मिनट के अंदर वो स्कैनिंग करते हैं और ऑलमोस्ट तमाम जो कंटेंट है करिकुलम का उसको ये असेस करते हैं इन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो और उसमें खूबसूरती ये है, जो मैंने खुद देखा कि उनके पास क्वेश्चंस ऑलरेडी वहां पर प्री डिटर्मिन्ड लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं विद देयर आंसर्स। सो द एग्जामिनर्स हैव नो चॉइस टू गो आउटसाइड द कंटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनर ने उसी के अंदर रहना है और दोनों एग्जामिनर्स ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। एंड देन देयर इज अ थर्ड पर्सन which we call it the exam inspectors. They are keep on visiting the tables and listening to the question and answer कि हमारे जो examiners हैं, और they are in the objectives that has been defined and given to them, and they are not trespassing, and they are not using their own knowledge, और कहीं ये इससे बाहर तो नहीं जा रहे। तो फिर वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो जाता है। वो इसलिए ऑब्जेक्टिव किया जाता है कि जो आपकी अपनी पर्सनल असेसमेंट है उसको हम खत्म कर दें। पर्सनल असेसमेंट से मुराद है कई दफा आप सख्त क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या आप इवन अगर उसने कोई सवाल का जवाब ऐसा दे दिया तो आप उसी ही ट्रैक पे लेके जाना शुरू कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट इन सम एग्जामिनर्स की ये आदत होती है कि वो फिर उसी ट्रैक पे रखते हैं और अल्टीमेटली उसको फेल करके छोड़ते हैं। सो उन्होंने इस चीज के उसको खत्म कर दिया कि इफ ही इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके आंसर्स डिफाइंड है और उसके नंबर भी डिफाइंड है। उसने अगर ये 4-5 चीजें बता दी हैं तो ही शुड गेट द फुल मार्क्स। इसी तरह एनी कॉम्पिटेंट पर्सन इज गिवन अ की दैट कैन मार्क इट एनी। इसलिए की जो उनके हाथ में दे दी जाती है, लाइक टॉक्स इन सीपीएसपी, लाइक टॉक्स इन यूएसए, उस यूएचएस, उसके अंदर जो कीज हैं वो डिफाइंड है और आपने उसकी जो मार्किंग है उसी के हिसाब से करनी। इसी तरह हाउ टू डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। अब ये थर्ड चीज है जी, एक थी वैलिडिटी, नेक्स्ट थी आपकी रिलायबिलिटी ऑफ द एग्जाम, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड थर्ड इज द reliability of the examination. So what is reliability? It is a restricting measurement errors within acceptable limits. हमने एग्जाम में जितनी भी एरर्स हैं, चाहे वो टाइम की वजह से हैं, चाहे वो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट की वजह से हैं,
और चाहे वो किसी शोर की वजह से, हमने वो मिनिमाइज करनी है और एग्जामिनेशन को रिलायबल बनाना है। दिस इज मेजरेबल। ये जो कंपोनेंट है ये मेजरेबल है। वैलिडिटी इज नॉट न्यूमेरिकली मेजर्ड। So it is concerned with how consistent test scores or other assessment results are from one measurement to the other. जैसे कि आप बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि देयर आर टू रूम्स, एक के अंदर देयर इज एयर कंडीशन एंड देयर इज नो डिस्टरबेंस एंड स्टूडेंट्स आर देयर आर 15 स्टूडेंट्स गिवन पेपर और वो एंटर हुए हैं, टाइम पे उनको पेपर मिला है, टाइम पे वो गए हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर एग्जामिनेशन सेंटर, अगेन 15 स्टूडेंट्स, वहां पर ना पंखा चल रहा है ना पानी है, और साथ वो एक वर्कशॉप है जिससे बड़ी शोर की आवाज़ आ रही है। और फिर जो एग्जामिनेशन जो है वो टाइम पे स्टार्ट नहीं होता और फिर हसल एंड बसल के अंदर ख़त्म किया जाता है। तो इससे रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ जाता है। सो दिस एनवायरनमेंट इज़ आल्सो नॉट रिलायबल टू मेक द रिजल्ट्स कंसिस्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। हाउ कैन यू इंक्रीज द रिलायबिलिटी? इसको बेहतर कैसे किया जाता है? सो देयर शुड बी अ गुड आइटम डिजाइन। अब आइटम जो है, कई दफा वो स्ट्रक्चर्ड ही अच्छा नहीं किया। अभी मैं जब एमसीक्यूज में आऊंगा तो आपको मैं आइटम की फ्लॉज के बारे में बताऊंगा कि ये जो आइटम है ये तो जो टेस्ट वाइज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो उसका आंसर कर दिया, लेकिन जो ट्रूली जो लाइक बच्चे थे वो इसको आंसर नहीं कर सके बिकॉज ऑफ सर्टन एलिमेंट्स विच हैज बीन पिक्ड बाय दीज टेस्ट वाइज स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर वो चांस ऑफ जो जैसे कहते हैं कि उन्होंने तुक्का लगा दिया इसके अंदर। सो दैट अगेन अफेक्ट दी आइटम डिजाइन। इसी तरह एक टेस्ट है, आपने एमसीक्यूज की स्टेम जो है वो 7 लाइनों की 10 लाइनों की कर दी है, और आपने नीचे जो दिए हैं डिस्ट्रैक्टर्स दिए हैं या आपने उसके ऑप्शंस दिए हैं वो भी तकरीबन 2-2 लाइनों के हैं, और आपने टोटल 30 सेकंड्स का मार्जिन रखा हुआ है टू सॉल्व दिस एमसीक्यू, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके अंदर चले जो बहुत ही लाइक बच्चे हैं वो तो उसको कर पाएंगे, लेकिन मेजोरिटी बच्चे जो है एमसीक्यूज को या तो ड्रॉप कर देंगे या उसको वो नहीं कर पाएंगे। दैट अगेन अफेक्टिव लाइबिलिटी। इसी तरह कंप्यूटर मार्किंग है, आपने फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर मार्किंग कर दी। आइटम बैंकिंग एंड रीयूज ऑफ प्रूवन साइकोमेट्रिक क्वालिटीज एंड एग्जामिनर ट्रेनिंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ट्रेनिंग्स हमारी as a faculty member of CPSP as secretary, we are focusing on the examination trainings also. We have been observing कि हमारे कई एग्जामिनर जो हैं वो प्रॉपर एग्जाम नहीं लेते, वो स्टार्ट सही नहीं करते, वो कम्युनिकेट सही नहीं करते, अग्रेसिव हो जाते हैं, कई दफ़ा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट के अंदर थ्रो कर देते हैं, कई दफ़ा वो बायस्ड हो जाते हैं विद द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स, वो बायस्ड हो जाते हैं कई दफ़ा विद द लैंग्वेज द डायलेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी तरह कई दफ़ा जो कंटेंट ऑफ क्वेश्चन है वो सही नहीं पूछ पाते, यानी कि एक क्वेश्चन है उसको इतना लंबा खींच जाएंगे कि आपके पास टोटल 10 मिनट हैं तो वो 4-5 मिनट का क्वेश्चन ही होगा जो बोलते रहेंगे और पूछते रहेंगे बोलते रहेंगे। तो वो जो बच्चा है कई दफ़ा या तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो ज़्यादा अपनी बात कर रहे होते हैं या उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनर्स, which which means that examiners should also be have a training. हमारे यहाँ जो नए नए सुपरवाइजर्स बच्चे बनते हैं, जो यंग सुपरवाइजर्स होते हैं, देयर मस्ट बी एन एग्जामिनर्स वर्कशॉप्स कि हाउ टू कंडक्ट एन एग्जाम टू मेक इट अ मोर रिलायबल एंड वेल एग्जामिनेशन कीपिंग इन व्यू द स्टैंडर्ड्स आल्सो। तो हमने इसको टेकअप किया है इन यूरोलॉजी, और हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जामिनर वर्कशॉप्स इन डिफरेंट रीजन्स। और इसी तरह हम लोग जो एफसीपीएस का जब वाइवा होता है तो उसमें हम 2 घंटे पहले तमाम एग्जामिनर्स को बैठ के डिटेल डिस्कशंस करते हैं रिगार्डिंग हाउ टू कंडक्ट द शॉर्ट केसेस एंड हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू कंडक्ट द लॉन्ग केसेस एंड हाउ टू मेक योर लॉन्ग एंड शॉर्ट केस ऑब्जेक्टिव। हम शीट्स के ऊपर उनसे क्वेश्चन फ्रेम करवाते हैं जी कि आप इसी के अंदर रह के पूछे कॉन्टेक्चुअल टू द केस, इससे बाहर ना जाएंगे। सो इसी तरह ये एग्जाम लाइबल होता है। तो इसका एक और भी तरीका होता है देखने का कि जब आप दो एग्जामिनर्स बैठे होते हैं, when two examiners are sitting together and then they assess the student, और अगर the assessment difference is more than 50%, एक ने उसको 40 मार्क्स दिए और एक ने 80 मार्क्स दिए हैं, तो अगर डिफरेंस जो है वो 40% से ज्यादा आ रहा है तो इसको कहते हैं कैपा स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी एक अलार्म होता है कि वजह क्या बनी है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन असेसमेंट ऑफ टू एग्जामिनर्स, कि एक ने बहुत लो मार्क्स दिए हैं और एक ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं।
तो कई दफ़ा इस पे भी हम पॉन्डर ऑन करते हैं कि व्हाट वाज़ द प्रॉब्लम इन दैट एग्जामिनेशन, इट वाज़ अ ट्रू पेन पिक्चर बाय द एग्जामिनर और इट वाज़ समवट अ बायस्ड पेन पिक्चर बाय द एग्जामिनर। इसी तरह व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, अब ये चौथा दिस द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन है। एग्जाम शुड बी फिजिबल। फिजिबल मीन्स के अब फिजिबिलिटी की अगर आप ग्रेडिंग पे आते हैं तो सबसे फिजिबल एग्जाम तो है कि ओरल वाइवा ले लें आप। अब अपने कमरे में बैठ जाएं, यू नीड अ चेयर एंड अ टेबल एंड देन यू कीप ऑन कॉलिंग द स्टूडेंट्स एंड आस्किंग देम 10-15 क्वेश्चन एंड देन दे आर गोइंग। फिजिबिलिटी जो है उस मीन्स कि जब आपने एक टॉक स्टेशंस बनाने हैं तो यू नीड लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स, बट अगेन दीज आर वेरी गुड असेसमेंट टूल्स टू असेस डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ये भी आपने देखना है कि क्या आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स है या नहीं है। सो इन जनरल एमसीक्यूज आर अ गुड फिजिबल एग्जामिनेशंस बना लेते हैं लोग, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, उनकी चेकिंग भी हो जाती है। टॉक्स, ऑस्लर्स and OSCEs and OSTEs are somewhat resource exhaustive, and they need lot of logistics, and they need lot of efforts in making a standardized high level, high cognitive order and high psychomotor skill orders and high effective domain orders, talk station and OSCE stations. So feasibility is also one of the important characteristic of examination. An exam, an exam should be a cost beneficial and easy to score, and it should not be a burden on the financial and human resources of the organization. जैसे कि आपने सारे टॉक स्टेशन जो हैं वो सिमुलेटर्स पे रख दिए हैं, तो आप इतने ज़्यादा सिमुलेटर्स कहाँ से परचेज करेंगे, ये भी आपने देखना है कि आपने उसकी फिजिबिलिटी, उसकी कॉस्ट भी देखनी है। योर ओन कॉन्टेस्ट है कि हमारे पास रिसोर्स एंड फाइनेंसिस के हमेशा प्रॉब्लम होते हैं, तो हमने वही टॉक स्टेशन बनाने जो हम अपने रिसोर्सेज के अंदर मैनेज भी कर लें। So these are the 5 components of an examination. That is, the exam should be valid, reliable, and it should be objective and feasible. So any question till now, जितने भी participants हैं जो अब तक मुझे सुन रहे हैं, they can ask any question so that we can move to the next session. जी, any question till now, so that if there's no question, can we move to the next session? Yes, sir, you can please move. Okay, our next session is basically one of the most important assessment tool, and that is MCQs हैं। MCQs तो खैर हमारे जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, इनको तो लाइफ में बनाने ही पड़ते हैं। Either they are for making the for undergraduates or postgraduates. MCQs is one of the important assessment tool, और तकरीबन हर डॉक्टर को ही ये लाइफ में बनाने पड़ते हैं। तो एमसीक्यूज जो है वो बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अच्छे एमसीक्यूज जो हैं, क्वालिटी एमसीक्यूज बनाना, द पॉइंट इज दैट हाउ टू मेक देम अ गुड क्वालिटी एमसीक्यूज, और दैट इज रियली टाइम कंज्यूमिंग। मुझे पता है कि जब हम एफसीपीएस के एग्जाम के लिए एमसीक्यूज क्राफ्ट कर रहे होते हैं तो मुझे बुक्स को सामने रख के बड़ी डेप्थ में, क्योंकि जब मैं इनके स्टेम और मैं इनके ऑप्शंस क्राफ्ट कर रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को ज़हन में रखना होता है, जिसके अंदर आइटम डिफ़िकल्टी एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल, रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन एंड वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मेरे ज़हन में होती हैं। एंड देन द डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस, कि मैंने जो डिस्ट्रैक्टर बनाने हैं, दैट शुड बी प्लॉजिबल, दैट शुड बी नॉट प्लॉजिबल। तो जब ये चीज़ें मेरे सामने होती है तो मुझे तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं, कई कई दफ़ा 1 घंटा लगता है एक एमसीक्यूज़ पे, टू मेक इट अ वेरी गुड एमसीक्यूज़ दैट हैज़ टू बी एडेड इन द एमसीक्यूज़ बैंक ऑफ द यूनिवर्सिटी और सीपीएसपी। तो आपको मैं बताऊं कि जो एनएचएस और जो आपकी है यूके की मेडिकल काउंसिल, जीएमसी जनरल मेडिकल काउंसिल, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, दे सिट टुगेदर इन देयर स्पेशलिटीज लाइक यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी, और वो तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे के अंदर 15 से 20 एमसीक्यूज जो हैं वो थ्रैश करते हैं विद जॉइंट डिस्कशंस। डिस्प्ले करने के बाद वो सारे बैठ जाते हैं और उसके एक एक उसके फ्रेज को, वर्ब को, स्टेम को, लीड इन स्टेटमेंट को, डिस्ट्रैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, देन दे साइन इट, एंड आफ्टर दैट दैट हैज टू बी सबमिटेड फॉर द एमसीक्यू बैंक इन जीएमसी जनरल मेडिकल काउंसिल एग्जामिनेशन है। तो ये फिर सीपीएसपी के अंदर भी शुरू हुआ है कि दे हैव गॉट अ बैंक एंड देन दे कॉल द एग्जामिनर्स, देन सिट टुगेदर
एंड देन लेकिन हमारा ये होता है कि देन वी हैव टू सिलेक्ट 200 MCQs इन दैट 4-5 hours. So बहरहाल we are traveling and we are advancing toward more standardized system of assessment in CPSP and hopefully in other universities. So this is a very important tool. We call it MCQs, and this tool is used everywhere. And this tool is being used in almost all sort of examinations, starting from undergraduates and ending up in the postgraduate diplomas and in fellowships and in master's degrees and even in PhD and MPhil. So multiple choice question is the most common type of written test item. This is item. CQs is an item, MCQs is an item, OSCE, TOEFL, OSCLR, these are all items. It's used in undergraduate, graduates and postgraduates medical education. And MCQs can be used to assess a broad range. MCQs जो है सिवाय psychomotor skill के आप तकरीबन तमाम चीजें assess कर सकते हैं. Only psychomotor skills and आपकी जो अपनी मेन पिक्चर होती है किसी भी चीज को डिफाइन करने की, जैसे कि आपने कोई स्टोरी बोर्ड लिखना है, आपने उसके अंदर कोई अपनी फीलिंग्स जो है वो डिस्कस करनी है, वो नहीं हो सकती. बाकी चीजें सारी ये MCQs असेस कर लेते हैं. If MCQs are drawn from a representative sample of content areas that constitute predetermined learning outcomes, they allow for a high degree of item or test validity. मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है. जैसे कि लेवल ऑफ नॉलेज है, learner must recall memorize information but not explain it. मतलब आप C1 लेवल के भी MCQs पूछ सकते हैं. State the average effective radiation dose from chest CT. आपने पूछा जी व्हाट इज द एवरेज इफेक्टिव रेडिएशन डोज है, वो 1 MSV है, 1 मिली 8 है, 16 है या 24. सो दिस इज अ रिकॉल, जस्ट लेवल 1 MCQs जस्ट आप रिकॉल कर रहे हैं. इसके अंदर कोई सिंथेसिस नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं है. इसी तरह आप थोड़ा सा और अगर चले जाते हैं इंफॉर्मेशन, बट ये भी C1 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आ रही है. स्टेट द एवरेज इफेक्टिव रेडिएशन ऑफ डोज फ्रॉम CT है, सेम वन, सॉरी. अब आ जाता है जी दूसरा कि कंबाइंड कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, यानी कि ये थोड़ा सा बढ़ गया है उसका लेवल. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेयर द रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम डिफरेंट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. अब इसमें देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग examination is associated with the highest effective radiation dose, A, B, C, D. अब ये थोड़ा सा चला गया है comprehension की तरफ और हल्का फुल्का synthesis की तरफ. So this is a somewhat a C2 level of MCQs. इसी तरह problem solving पे आ जाएं. Problem solving MCQs are always high cognitive order MCQs. So अगर इसी MCQs को ले जी, which of the following actions decrease the radiation dose from chest CT the least? A, decreasing MA from 250 to 125 and keep on getting a decreasing scan time from 1 to 0. अब आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन वही है जो कि C1 से चल रहा है, लेकिन जब आपने उसको फ्रेज किया है इस तरीके के साथ कि अब वो चला गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो इट इज ऑल हाउ यू क्राफ्ट एंड MCQs डिपेंडिंग हाउ यू हैव टॉट दी स्टूडेंट्स. अगर आपने उनको हायर लेवल टीचिंग की है इन ग्रुप डिस्कशंस, इन ट्यूटोरियल्स, in the classroom, in small group discussions हैं, तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे हाई कॉग्निटिव ऑर्डर असेसमेंट, तो आप MCQs भी जो है बनाएंगे वो C3 लेवल का होगा. So thoughtfully written objectives are critical to the construction of appropriate test question and in ensuring adequate assessment of intended learning competence. So MCQ written to test knowledge would not be appropriate to test competence for objective that reflects comprehension higher level. So MCQs को हमें सिर्फ नॉलेज को रिकॉल करने के लिए नहीं बनाना चाहिए. वो तो बच्चों के लिए बनते हैं जो जस्ट 4th 5th 5th 6th क्लास के बच्चे हैं. हमें इसको क्राफ्ट करना चाहिए सिंथेसिस को, कि जब हम उनकी डीप लर्निंग करवाएंगे बच्चों की, जब उनकी डीप लर्निंग होगी तो फिर हमारी असेसमेंट भी, हमारे बच्चे भी जो है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हायर उनका थॉट प्रोसेस बहुत बेहतर हो जाएगा. For example, MCQs that ask the learner to recognize benign dermal calcification on a mammogram does not test the learner problem ability itself. So ये recall है. A question that provides a specific patient information and imaging data, इसे हम patient बिगनी कहते हैं,
that asks the learner to choose the most appropriate management is an example of an item that test problem solving. So objective हमारा बनाने का MCQs क्या है कि हमने problem solving abilities check करनी है when we are formulating the MCQs. Test item composed of patient Vigne's offers several benefits in addition to assessing application of knowledge. Because such questions require problem solving, they increase the validity of the examination. Such items are more likely to focus on important information rather than on trivia. अब मैं आपके पास आता हूँ कि MCQs के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. MCQs के 3 कंपोनेंट्स हैं. इसको टोटल कोई आइटम कहते हैं. One is the stem, the second is the lead-in, and the third are the options. Options के अंदर एक की ऑप्शन है और बाकी distractors है. So the stem should contain all the relevant information and as much of this item as possible. If a phrase is stated in the stem, it should not be repeated in the option. अब ये देखें, which of the following action would decrease radiation dose by 1/2? अब इसके अंदर आप देखेंगे सारे ऑप्शंस के अंदर डिक्रीजिंग MA, डिक्रीजिंग MA, डिक्रीजिंग, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा और बड़ा रिडंडेंट सा MCQ है. ठीक है जी. So the phrase which you have used in the stem should be avoided to be used in the options. Item with all relevant information in the stem. By what fraction would MA need to be decreased to the lower dose by 1/2? ठीक है जी. इसी तरह आप आगे जाएं. Absolute terms such as always, never, all और none should not be used in stem और distractors है. ये कंफ्यूज भी करती हैं और ये स्टूडेंट्स को यानी कि अगर आप इसका डिफिकल्ट इंडेक्स और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स करवाएं इन MCQs का तो ये बड़े लो लेवल पे आते हैं. So most of the good examiners they avoid using these absolute term in their MCQs. अभी ये वाला जो MCQs है, this is just a recall. यानी कि आप ये समझ लें कि ये नॉलेज और रिकॉल के लेवल पे आ रहा है. ये भी MCQs अगर आपके 100 का पेपर है तो आप 2 या 3 रख दें स्टार्ट के अंदर, ताकि एक स्टार्ट के अंदर थोड़ी सी पेसिंग हो जाए स्टूडेंट को कि उन्होंने 2-3 MCQs कर ली हैं तो वो थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ लेते हैं. वो थोड़ा सा उनका मॉरल्स जो है वो थोड़े से डेवलप हो जाते हैं और वो आगे पेपर अटेम्प्ट करने के अंदर उनको आसानी होती है. अगर आप स्टार्ट के अंदर ही बहुत डिफिकल्ट MCQs रख देंगे तो कई दफ़ा वहीं से कई दफ़ा जो है वो डीमोरलाइज हो जाते हैं. सो ट्राई टू कीप दी इजी MCQs एट द स्टार्ट एट द एंड. यानी 1-2 स्टार्ट में रख दें, 1-2 एंड में रख दें ताकि कवर हो जाए उसका जो पेसिंग ऑफ हिज अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन है. इसी तरह ये भी MCQs है. दिस इज आल्सो मेजरिंग द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स है. इसी तरह नेगेटिवली वर्ड स्टेम, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटी मैनिफेस्टेशन ऑफ स्मॉल एयर वे. आप कोशिश करें कि स्टेम के अंदर ज्यादा नेगेटिव आइटम्स जो है वो यूज ना करें. अगर आपने स्टेम के अंदर भी एक नेगेटिव आइटम यूज किया और आपने उसी को लीड में भी ले गए तो फिर ये डबल कंफ्यूजन क्रिएट करेगा फॉर द स्टूडेंट्स. इसी तरह पॉजिटिवली वर्डेड आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट allows small airway disease to be distinguished from the interstitial lung disease on the chest CT scan. So ये भी यूज किए जाते हैं, इसमें ये नहीं कि आप यूज कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि ये नेगेटिव आइटम्स को आप अवॉइड करें, पॉजिटिव आइटम आप यूज कर सकते हैं. ठीक. अच्छा जी, MCQs की टाइप्स क्या होती हैं जी? एक तो कहते हैं जी टाइप A MCQs विच कॉल्ड सिंगल बेस्ट आंसर. इसके अंदर 5 डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, 4 डिस्ट्रैक्टर हैं और 1 इसकी की होती है. और द गेसिंग की जो प्रोपोर्शन होती है इसके अंदर दैट इज 20% इन द 5 बेस्ट एंड 25% इन द 4 बेस्ट जो है, यानी कि बेस्ट ऑफ द 4 MCQs. 4 ऑप्शंस हैं, आपने इसमें से एक सेलेक्ट करना. नेगेटिव मार्किंग फॉर टाइप A MCQs इज नॉट एडवाइज्ड. ये पहले किसी दौर के अंदर आपको याद होगा FM जेम्स के एग्जामिनेशंस के अंदर होती थी, लेकिन सिंस देन this may bias against certain personality traits and does not test for positive reasoning powers intended to be measured by self. तो इसमें ये चीज बड़ी देखी गई है कि नेगेटिव टेस्टिंग बहुत कई दफा अच्छे स्टूडेंट्स को भी फेल कर देते थे. वेरी हाई
कॉम्पिटेंट टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर तो नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो तकरीबन एक्सटेंड हो गई है। तो ज़्यादातर जो एमसीक्यूज हैं दे आर बेस्ड ऑन 5 ऑप्शंस विद 1 की एंड 4 डिस्ट्रैक्टर with a possibility of guessing to 20% only. Strength of MCQs क्या है? Adequate sampling of the content है. Assessment is not affected by the student ability to write. They can be reliable, marked as an answer is predetermined, and they can be used for quick revision at the start or end of the class है. इसी तरह large bank of question can be built up to reduce the future preparation in time. It is easy to score, easy to analyze and provide a very rapid feedback and can test various level of cognition है। जो भी आपने पढ़ाया C1 है, C2, C3 है, तो आप इस लेवल की जो है असेसमेंट कर सकते हैं। लिमिटेशंस एमसीक्यूज की क्या है? They do not test the ability to develop and organize ideas. जब आपने कोई स्टोरी लिखनी है, जो आपने कोई फिलॉसफी जो है डिटरमिन करनी है, आपने कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, राइटिंग है, पेन पिक्चर है, समटाइम पेन पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको एक दिया जाता है, एक स्नैपशॉट लिखेंगे, व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द डिक्लाइनिंग हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान, तो यू कैन नॉट असेस ऑन एमसीक्यूज। इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू राइट अ प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर। जैसे मैंने बताया कि मुझे लिखने के अंदर भी स्टेज पे आके, आई एम वेरी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी इन पंजाब, मुझे भी तकरीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं एक अच्छा एमसीक्यू लिखने के लिए। They cannot test the psychomotor and affective domains, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, इसलिए कि यही शॉर्टकमिंग्स होती हैं किसी टूल की कि वो सारे एरियाज कवर नहीं करता। बट देयर आर अदर टूल्स लाइक टॉक्स है, ऑस्की है, व्हिच कैन असेस द साइकोमोटर स्किल्स एंड इफेक्टिव डोमेन के लिए भी यू हैव गॉट these talk stations and you've got these OSPs and OSTs and OSCIs. So guessing may result, लेकिन 1-5 के अंदर guessing का जो proportion है या percentage, that's only 20%. Questions are often reused, which mean attention disorder. ये एक प्रॉब्लम हमें देखने में आया है और आप लोग भी महसूस किया होगा कि जो हम जो आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ मेकिंग एमसीक्यूज है या हमारे अंदर जो एक एनर्जीज होती हैं वो डिक्लाइन कर जाती हैं। और हम क्या करते हैं कि वही पुराने रिडंडेंट एमसीक्यूज को रीयूज करते रहते हैं, या किसी को कह देंगे यार ये 10 15 20 बना दो, मैंने प्रेजेंट कर। सो उससे नुकसान जो होता है, जैसे कि मैं भी आपको एक पिक्चर देता हूँ कि वी हैव गॉट 2600 अन checked MCQs being deposited in CBSP of urology, यानी कि 2600 MCQs पड़े हुए हैं जो कभी रिव्यू नहीं किए गए। अब रिव्यू करने के लिए you have to sit on the computer and then you have to see all the stem and the structures and leading statements and check their references, उनके phrases चेक करना, उनकी ग्रामर चेक करना, उनके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उनके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी है और इनअप्रोप्रिएट है, वो चेक करना। इट टेक्स ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स फॉर सिंगल एमसीक्यू। तो अभी हम लोगों ने फिर बैठ के ये फैसला किया फैकल्टी की मीटिंग के अंदर दैट वी विल सेंड 250 एमसीक्यूज टू ऑल द रीजनल सेंटर एंड 5 पर्सन्स हैव बीन नॉमिनेटेड बाय सीपीएसपी फैकल्टी, जो कि बैठेंगे एक दिन एक महीने के अंदर और तमाम ये 2500 जो एमसीक्यूज हैं इनको रिव्यू करके जो है वो बैंक में जमा कराएंगे। सो ये भी एक चीज़ देखने में आई है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्वालिटी भी कम होना शुरू हो गई है। उसका नुकसान ये होता है कि फिर देयर इज लॉट ऑफ पासिंग परसेंटेज इन एग्जामिनेशन, क्योंकि बार बार वो बैंक रीयूज हो रहा है। तो बच्चे तो बड़े तेज होते हैं, वो उनके पास सारा बैकलॉग जो या उनके पास पिछले एमसीक्यूज उनका सारा रिकॉर्ड होता है। तो वो जब तक आप इसको रिव्यू करके नए एमसीक्यूज ऐड अप नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जाम है उसकी क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट कमिंग ईयर नीचे आना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं या वो सीपीएस के अंदर सीपीएसपी के अंदर है, they have to continuously contribute for the new MCQs and continuously reviewing them and adding new MCQs in the MCQs bank. अगर आपका बैंक जो है किसी भी स्पेशलिटी या फैकल्टी का वो कई सालों से रिव्यू नहीं हुआ या वो उसके अंदर एडिशंस नहीं हुई और वो रिव्यू जो एमसीक्यूज हैं आपकी उसकी बैकलॉग बहुत ज़्यादा, तो वो रिफ्लेक्ट करता है योर वर्क showing in the faculty and in your examination section. So question need to be pre-tested and item reviewed to ensure the validity of the items. अच्छा, ये जो questions हैं जब बन जाते हैं by the supervisors and examiners, इसके बाद ये जाते हैं examination section। वहाँ पर इनके पास experts होते हैं और होने भी चाहिए। They are
एक्सपर्ट्स इन मेडिकल एजुकेशन, वो फिर इसकी सेहत को चेक करते हैं कि ये जो एमसीक्यू है ये अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्ट इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एमसीक्यूज, क्या ये ठीक है या इसको भी फर्दर ठीक करने की जरूरत है। तो ये 2 टायर चेक है, तब जाके ये वेट होता है एमसीक्यूज, और फिर ये साइन होके एमसीक्यूज बैंक के अंदर फाइनल हो जाता है। क्योंकि अब इसके बाद ये एग्जामिनेशन सेक्शन में एग्जाम आता है, और अगर ये रिडंडेंट एमसीक्यूज होगा तो इसके अंदर फिर बाद में हमें फेस करना पड़ता है जी कि एमसीक्यूज स्ट्रक्चरली वीक था, इसके अंदर ये फ्लॉज थे। तो ये लिमिटेशन रहनी है। सो लेट्स कम टू दी वन बेस्ट। मैंने पहले बताया कि दे हैव गॉट अ क्वेश्चन स्टेम, ये ऊपर देखें क्वेश्चन स्टेम में। फिर देन देयर इज लीड इन स्टेटमेंट, जो कि जिससे हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और देन देयर आर 5 ऑप्शन, और नीचे फिर हमारे पास एक की होती है जो कि एग्जामिनर को पता होता है, जो कि इसको असेस कर रहा होता है। आप ये देखें, अनदर वे टू एक्सप्लेन अ स्टेम, and then there is a lead-in statement, and then there are the list of option, और अब इस सारे कंपोनेंट को आइटम कहते हैं। दैट्स व्हाई एमसीक्यूज है या टॉक्स है या ऑस्की है, इनके आइटम्स का एनालिसिस होता है, यानी कि हर एमसीक्यू का, हर ऑस्की स्टेशन का, और हर टॉक स्टेशन का, और हर एससीक्यू का एक एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम आइटम एनालिसिस बोलते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट आइटम, जिसको हम एमसीक्यू कहते हैं। वन एमसीक्यू इस वन आइटम, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, स्टेम है, इसकी लीड इन स्टेटमेंट है, एंड ऑप्शंस है। और ऑप्शंस के अंदर देयर आर 1 की, एंड देन देयर आर 4 डिस्ट्रैक्टर्स है। सो जस्ट ग्राफिक व्यू के अच्छा एमसीक्यू होता क्या है, इसकी एक जो स्टेम है सॉरी, उसको इट शुड हैव ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 या 3 लाइंस की होनी चाहिए। अगर सिंगल लाइन की है तो दैट्स नॉट अ गुड स्टेम। और शॉर्ट ऑप्शंस होने चाहिए, ऑप्शंस एटलीस्ट 1 लाइन का होना चाहिए ऑप्शन जी। और अगर सारे बैलेंस होंगे तो दिस विल बी अ गुड एमसीक्यू आइटम शेप। अब ये देखें, दिस इज अ पुअर आइटम, उसका शॉर्ट स्टेम है, और दे आर वेरी लॉन्ग ऑप्शंस, 2 लाइनों के ऑप्शंस हैं। अगेन अनइवन है ये आइटम स्टेम जो है वो भी शॉर्ट है, और देयर आर आप इन्हें कहते हैं कि देयर आर नॉट कंसिस्टेंट, देयर आर नॉट पैरेलल, एंड देयर आर होमोजेनस, हिट्रोजेनस है कि ये अनइवन है, कोई लंबा स्टेम है, कोई बहुत छोटा स्टेम है। तो स्टेम को भी तकरीबन तकरीबन जो है ना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बड़े वाइज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेस्ट वाइज स्टूडेंट्स, वो हमेशा लॉन्ग स्टेम वाले ऑप्शन को वो करेक्ट कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब हम एमसीक्यूज बनाते हैं, कभी आप भी नोट कीजिएगा, तो हम क्या करते हैं कि जो लंबा स्टेम है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है, और वो हमने एंड पे रखा होता है। यानी ए बी सी डी जो है, हमारी कोशिश होती है डिस्ट्रैक्टर डालने की, और हम जो है डी, ए बी सी डी ई जो है वो हम की बना देते हैं। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट 10 एमसीक्यूज बनाएंगे और आप बना के देखें, तो आप अगर ये मेरी बात आपको पहले ना पता होती, तो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे ही करेंगे कि आप आखिरी वाला जो है वो की बना देंगे, और लंबा इसको ऑप्शंस को ले जाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर अमंग अस, तो ये फौरन इस चीज़ को परसीव करते हैं, और इसके अंदर स्टडीज भी हैं, और इसके अंदर पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो करेक्ट होती है। तो इसलिए ये भी एक मैसेज है फॉर द एग्जामिनर्स, कि आप इसके सीक्वेंस को चेंज करते रहें। सारे ही ई जो है वो ना की बनाएं, कीप ऑन चेंजिंग ए बी सी एंड डी, ताकि आपका सीक्वेंस बैलेंस रहे। इसी तरह का देखें, ऑप्शन ऑन विच द क्वेश्चन स्टेम बेस्ड मस्ट बी। अब ये ऑप्शंस के बारे में बता कर रहा है जी, दैट शुड बी इनडिस्प्यूटेबल अ बेटर आंसर। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए, जैसे कि सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब नीचे 5 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है जी इस्लामाबाद, आगे लिखा हुआ है जी दिल्ली, और वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क, और लंदन दिया हुआ है। तो वो देयर आर इम्प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स, किसी ने भी उनको टिक नहीं करना, सीधा सीधा उन्होंने इस्लामाबाद को टिक कर देना है।
So indisputably a better answer than any of the others, even though others might be partially correct or correct in certain special circumstances. यानी करीब करीब हो ताकि उसको सोचने का मौका दे यार ये भी हो सकता है, लेकिन जब उसने डेप्थ में पढ़ा होगा और जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर उसी ऑप्शन को टिक करेगा जो कि करेक्ट, सॉरी। इस तरह that should be plausible and attractive to the uninformed, similar to the correct answer in construction and length, and grammatically in should be consistent and logically compatible with this time. इसी तरह पहले एक सिंपल ट्रू एंड फॉल्स वाले एमसीक्यूज भी होते थे कि आपने एक स्टेम दिया है और साथ नीचे ऑप्शन जो है ट्रू एंड फॉल्स के हैं, तो ये इजी टू मेक एंड इजी टू सॉल्व थे, इसलिए अब ये जो है वो ज़्यादातर बच्चों के 4, 5, 6, 7 क्लास में दिए जाते हैं, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या दे आर डूइंग देयर एमबीबीएस इंजीनियरिंग उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तकरीबन। इस तरह मल्टीपल ट्रू एंड फॉल्स है कि दिए हैं तो आपने सब ऑप्शंस को ट्रू एंड फॉल्स जो है वो बताना है। सो डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल ट्रू एंड फॉल्स एंड वन बेस्ट एमसीक्यूज है कि वो C1 लेवल की असेसमेंट करता है मल्टीपल ट्रू एंड फॉल्स, और उसके अंदर जो गेसिंग ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट 50% होता है, लेकिन 1-5 जो रेशो है जो या 1 बेस्ट है इन 5 ऑप्शन, उसके अंदर जो गेसिंग रेशो है दैट इज ओनली 20% है। अच्छा जी, अब ये देखें जो हाँ जी, इसमें हमने देखना है जी हमने व्हाट हाउ टू राइट व्हाट इज द बेस्ट टाइम एंड व्हाट फ्लॉज आर टू बी अवॉइडेड। ये फ्लॉज एमसीक्यूज के अंदर आइडेंटिफाई करना और इनको करेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इनको देखना कि ये फ्लॉज होते क्या हैं और ताकि ये फ्लॉज हम रिपीट ना करें। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, फ्लॉज बेनिफिट दी टेस्ट वाइज एग्जामिनीज, ठीक है जी, और दूसरा है कि इररेलेवेंट डिफिकल्टी डज नॉट टेस्ट एग्जामिनीज स्पेसिफिक नॉलेज। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो फ्लॉज हैं जो स्ट्रक्चरली हमसे डल जाते हैं और हम चूंकि उनको ज्यादा डीपली देखते नहीं है, तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये कई दफा टेस्ट वाइज स्टूडेंट को बेनिफिट दे जाते हैं और ट्रू पिक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने नहीं आती। जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू टेस्ट वाइजनेस एंड इश्यूज रिलेटेड टू इररेलेवेंट डिफिकल्टी। अब ये दो चीजें हैं जो कि एमसीक्यूज कंस्ट्रक्शन में देखी गई हैं इन स्टडीज। वन इज द इश्यूज रिलेटेड टू टेस्ट वाइजनेस and other these the issues related to irrelevant difficulty. अब let's come to the issues related to test wiseness. इसमें हमने बाय डिफॉल्ट ऐसे क्लूज डाल दिए हैं, ये डाल देते हैं जो कि राइट आंसर की तरफ ले जाते हैं। सो एग्जामिनी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बेस्ड ऑन फ्लॉज एंड नॉट ऑन नॉलेज। तो जो एमसीक्यूज हल करने वाला बच्चा है वो इन ऑप्शंस को इन फ्लॉज की वजह से करेक्ट करता है, अपनी नॉलेज की वजह से करेक्ट नहीं करता है। तो वो है क्या, देयर आर डिफरेंट टेस्ट वाइज क्यूज, जैसे कि ग्रामेटिकल क्यूज हैं, लॉजिकल क्यूज हैं, सॉरी एब्सोल्यूट टर्म्स हैं, लॉन्ग करेक्ट आंसर है, वर्ड रिपीट्स हैं एंड कन्वर्जेंट स्ट्रेटेजी है। सो ये 6 एरियाज हैं जहां हम गलती भी करते हैं और एमसीक्यूज के अंदर देखा भी जाता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और वही आपकी डिस्ट्रैक्टर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। सो ग्रामेटिकल क्यूज जो है आप ये देखें, द इजीएस्ट वे टू गेट एन अपडेट ऑन मेडिकल इंफॉर्मेशन इज। अगर इसके अंदर मुझे आप बताएं कि क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो पार्टिसिपेंट्स हैं तो मैं आगे चलूं। कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई व्हाट इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन दिस एमसीक्यू? सर इज का है, जबकि बीच में वो बुक्स, जर्नल्स, गाइडलाइंस, तो इसमें इंटरनेट आ जाएगा। जी वेरी गुड, ये जो है बिल्कुल उन्होंने सही आइडेंटिफाई किया। अब ये कई दफा हमसे हो जाता है कि हम प्लूरल सिंगुलर्स की तरफ चले जाते हैं और जो बच्चे हैं वो आजकल हमसे ज्यादा ज़हीन और फतीन हैं और ये फौरन पिक कर लेते हैं। तो अब जब इस एमसीक्यूज का आप एनालिसिस करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेशन जो एनालिसिस है वो बड़ा पुअर आएगा।
तो इसके अंदर मोस्टली जो है वो इंटरनेट को ही है, बट दैट मीन्स अगर मैं इसका डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस भी करूँ तो वो भी बड़ा पुअर आएगा, सिर्फ डी को ही लोग करेंगे, बाकी डिस्ट्रैक्टर्स को लोग इसको ऑप्ट नहीं करेंगे। Because an item writer tends to pay more attention to the correct answer than to the distractors, grammatical cues are more likely to occur in the distractors. इसी एग्जांपल के अंदर अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि इन्होंने इसको सिंगुलर और पूछा, बाकी ऑप्शंस में प्लूरल था लेकिन एक के अंदर सिंगुलर था, तो दैट वाज द करेक्ट आंसर है। इसी तरह लॉजिकल क्यूज ए सबसेट ऑफ ऑप्शंस आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। A 20-year-old adolescent attended the extent emergency complaining of abdominal pain, fatigue, polyuria, polydipsia, and vomiting. On examination, the patient was drowsy and dry. Which of the following changes you accept to see in the blood test? Can anybody explain what is the logical cue in this MCQ? सर देखिए ब्लड टेस्ट की बात आ गई ना। जी जी। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए दोनों देखे जाते हैं। अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं, देखें ना इसकी स्टेम और इसकी ऑप्शंस को, इसके अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं होना चाहिए। शुगर ये तो गया ना, ये वाला जो डिस्ट्रैक्टर है, ये हाइपोकैल्सीमिया भी इसके अंदर नहीं फिट इन हो रहा। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ये सब शुगर की तरफ कर रहे हैं। हाँ जी, अब वो उसके पास आप देखें ये दो तो खत्म हो गया, अब 3 रह गए ऑप्शंस, इसके अंदर उसके लिए आसानी निकल गया तकरीबन। क्योंकि बंदा सोचेगा कि इतना कुछ है, पेशेंट को प्रॉब्लम्स भी हैं, ड्राउजी भी है, तो फिर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल तो नहीं होगा। जी ऐसे ही है। तो इसके अंदर देखिए, इन दिस आइटम ऑप्शंस A, B and C include all the logical possibilities in any patient. A human being has either increased blood sugar, normal blood sugar. The test-wise student knows that the correct answer must be A, ठीक है जी, और B और C, whereas the non-test-wise students spend time concentrating D and E. ठीक है जी, तो दिस इज नॉट अ गुड कंस्ट्रक्टेड MCQ जिसके अंदर आप लॉजिकल क्यूज दे रहे हैं, और वो जो इसका एंड रिजल्ट है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, वो आपका ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेगा। लेट अस कम टू द ये देखें जी, एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर असेसिंग फीटल वेल बीइंग is a non-stress test. A well baby demonstrates the following fetal heart rate pattern. ये सारे वो MCQs हैं जो कि आपके रिसर्च के अंदर आए हुए हैं, पिक हुए वहां से जब इनके एनालिसिस यूनिवर्सिटीज ने किए हैं। डू यू थिंक दैट फीटल ब्रीदिंग जो है वो इसका स्टेम के साथ कॉन्टेक्चुअल है? इसी तरह बेसलाइन वेरिएबिलिटी, C and E आर रिडंडेंट, इम्प्लॉजिबल, यानी ये दो तो निकल गए, अब उसके पास बेसलाइन हार्ट रेट 120 और इवन के एविडेंस ऑफ फीटल मूवमेंट भी गया, 2 फीटल हार्ट रेट एंड रेट एक्सेशन, यानी कि A और D के दरमियान जो है ना उसने फैसला करना है। 3 तो वैसे ही रिडंडेंट होंगे इसके अंदर। अच्छा, एब्सोल्यूट टर्म्स जो हैं, दैट इज नेवर और ऑलवेज, दैट शुड नॉट बी यूज इन द ऑप्शंस है। ये भी हमारे अक्सर देखने में आया कि हम लोग ये जो एब्सोल्यूट टर्म्स हैं, नेवर, एवर, ऑलवेज, वी फ्रिक्वेंटली यूज इन द ऑप्शंस, इनको यूज नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये कॉमन मिस्टेक है, ये वाली, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, जो कि अगर आप इसको टेबुलेट करें दी आइटम फ्लॉस, तो ये नंबर 1 पे आती है। दैट इज दी करेक्ट आंसर इज लॉन्गर, मोर स्पेसिफिक और मोर कंप्लीट देन अदर ऑप्शंस है। अब ये देखें, इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन वजाइनल ब्रीच डिलीवरी इज मोस्ट लाइकली टू कॉज सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। एक ऑप्शन जो लंबा दे दिया इसने, और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इस आंसर का नहीं पता होगा वो इसी को टिक करेंगे, यानी बाकी छोड़े, हमें तो किसी पता। इसी तरह वर्ड रिपीट्स, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग MCQs में करते हैं। वर्ड और a phrase included in the stem and in the correct answer है। अब इसके अंदर देखें कि अब वर्ड रिपीट हो रहे हैं,
24-year-old with previous history of chronic PID present with primary infertility and select the। अब इसके अंदर जो स्टेम है वही वर्ड रिपीट हो रहा है नीचे डी के अंदर। तो अगेन इट इज अ वर्ड रिपीट क्यू जो है, एंड इट इज एन आइटम फ्लॉ बेसिकली। तो अब इस जब एमसीक्यूज का एनालिसिस किया गया तो इसके अंदर डी ही को किया गया। इवन बोथ दी अपर क्वार्टाइल गुड स्टूडेंट्स एंड द लोअर क्वार्टाइल एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, उन्होंने डी को ही इसको टिक किया उन्होंने। इसी तरह आप ये देखेंगे 58-year-old man with a history of heavy alcohol use and a previous psychiatric hospitalization is confused and agitated. He speaks of experiencing the world as unreal. This symptom is called सर डीरियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइज वो कर रहा ना। डी या सी? सी सर, सी है, सी आंसर, डीरियलाइजेशन। हाँ जी। अब ये देखना था, this item use the word unreal in the stem and derealization is the correct answer. Sometimes a word is repeated only in a metaphorical sense. जैसे कि stem mentioning bone pains with correct answer beginning with the prefixed osteo जी। तो अब इसके अंदर भी जो स्टूडेंट्स तो अच्छे हैं वो तो कर लेंगे इसे, लेकिन इस फ्लॉ की वजह से जो नीचे वाला क्वार्टाइल है वो भी इसको करेक्ट आंसर कर देगा। इसी तरह कन्वर्जेंस होती है, ये भी हम लोग अक्सर अपने एमसीक्यूज के अंदर करते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि कई दफा हम लोग ए ऑप्शन में एक चीज दे देंगे, बी में दो दे देंगे, सी में तीन दे देंगे, 4, 5 में ना पूरा एक जो है ना ऑप्शन उसका लंबा, यानी कि हम कन्वर्ज कर देंगे अपने आंसर को। तो ऑटोमेटिकली वो हमारी जो आइटम फ्लॉ को जो है वो पिक कर लेगा स्टूडेंट्स, और वो उसी को आंसर करेगा जी। अब ये आ जाता है इररेलेवेंट डिफिकल्टी। इररेलेवेंट डिफिकल्टी जो है, कई दफा अगर तो बड़ा हाई स्टेक टेस्ट है तो आप जरूर डालें उसके अंदर, अगर आपने पढ़ाया भी है जरूर डालें, लेकिन आप उसके टाइम का भी ख्याल करेंगे। जैसे कि अगर आपने 1 मिनट दिया है एक एमसीक्यूज को एंड यू आर सीइंग द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि आप पहले उनकी मैपिंग करें कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सामने हैं और मैं तो एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ, मैं तो उसको 30 सेकंड्स में आंसर कर दूंगा, लेकिन हो सकता है इनको शायद ये 1.5 मिनट, ये 2 मिनट भी कम पड़ेंगे। तो इररिलेवेंट डिफिकल्टी की वजह से भी टेस्ट का जो स्कोर है वो स्क्यूड हो जाता है और अनबैलेंस हो जाता है, एंड दैट डज नॉट असेस द नॉलेज ऑफ द इंटेंडेड टॉपिक। कई दफा देयर आर टू लॉन्ग ऑप्शंस, दे आर कॉम्प्लिकेटेड डबल, देयर इज एन एक्सट्रेनियस डिटेल इन दिस स्टेम। 8 और 10 लाइनों का स्टेम होता है। न्यूमेरिक डाटा इज नॉट कंसिस्टेंट, वेग फ्रीक्वेंसी टर्म यूज की जाती है, नॉन पैरेलल लैंग्वेज इन दी ऑप्शंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। सो ए, बी एंड सी आर रिलेटिवली प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स और ऑप्शंस, एंड सी एंड जो है ना ये जो है रेयरली, ये वाला ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है जी। आपको ये देना चाहिए, रिप्लेस विद नंबर्स होना चाहिए जी। डोंट यूज द वर्ड रेयरली एंड यूजुअली। इसी तरह ये देखें, a 75-year-old woman complains of severe neck and shoulder pain. You suspect polymyalgia. Which of the following is the most appropriate? Shoulder girdle muscle tenderness is not related to the condition. Loss of weight and fever or urine is likely to contain Benz Jones. Muscle biopsy is positive. Steroid proves a very prompt symptomatic response but must be अब ये बड़ा ये एमसीक्यूज ना अपनी तरफ से बड़ा मुश्किल करके बनाया गया है ये, बट इट इज वेरी इनकॉन्सिस्टेंट। इसके अंदर जो आपकी ऑप्शंस हैं दे आर नॉट होमोजेनस। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप इसकी मैनेजमेंट पूछ रहे हैं तो मैनेजमेंट आपकी फोकस्ड होनी चाहिए। अगर आप उससे कोई इंटरप्रिटेशन इन द डायग्नोसिस पूछ रहे हैं तो मतलब आप ऑप्शंस के अंदर उसकी फिर मैनेजमेंट की, इसको स्टीरॉयड ना डालें, आप फिर ऑप्शंस मैनेजमेंट पे रखें या इन्वेस्टिगेशंस पे रखें हैं, तो दैट कैन बी होमोजेनस ऑप्शंस। अब आप अगर सारी चीजें मिक्सअप कर देंगे तो वो उसको डिसाइड करने में मसला होगा स्टूडेंट को कि ये पूछना क्या चाह रहा है, ये इमेजिंग पूछना चाह रहा है, ये बायोकेमिकल चीजें पूछना चाह रहा है, ये मुझसे ट्रीटमेंट पूछना चाह रहा है। अगर आप सारी चीजें दे देंगे तो उसको डिसाइड करने में मुश्किल होगा कि हो सकता है सारी चीजें ठीक भी हों उसमें ऑप्शंस के अंदर है, बड़ी क्लोज फॉल कर रही हो।
try to make your options consistent, parallel and homogeneous. The response option in this example not parallel. The option A and B are about clinical features and option C and D are about laboratory investigation, while option E is about the management. So the option should be homogeneous. ये भी अक्सर गलती हम करते हैं कि हम लोग जो है ना, जब मैनेजमेंट के अंदर सारी चीजें डाल देते हैं। आप कोशिश करें स्टेम के अंदर जब आप लीड इन पे आए तो वही चीज पूछें जो कि फोकस्ड हो, यानी कि आपने एक इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जाना है उसे, तो इन्वेस्टिगेशन पे ही रखें उसे। अगर आपने मैनेजमेंट पे लेके जाना है फिर आप मैनेजमेंट के ऑप्शंस दें, ट्रीटमेंट ऑप्शंस दें उसे। फिर आप उसे इमेजिंग और बायोकेमिकल चीजें और ट्यूमर मार्कर्स की तरफ ना जाएं। इसी तरह इररिलेवेंट डिफिकल्टी, नॉन पैरेलल लैंग्वेज इन ऑप्शंस है नहीं है। अब इसको देखें तो आप देखेंगे इसके अंदर भी वही है कि आप पूछ क्या रहे हैं स्टेम के अंदर, और नीचे जो ऑप्शंस हैं दे आर totally inconsistent and they are not parallel and they are not homogeneous. Negatively phrased item is not advisable to use a negatively statement in the stem, particularly if one or more of the options contain negative, जिसे हम कहते हैं डबल नेगेटिव। तो डबल नेगेटिव जो कि आपके स्टेम में आ गई, लीड इन में आ गई, या लीड इन में आई और ऑप्शंस में आई, वो इररिलेवेंट डिफिकल्टी क्रिएट करती है। यानी कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो थोड़ा सा स्टक अप हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कई दफा उसका माइंड जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव में बैलेंस करना शुरू हो जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस। अब देखें बी ऑप्शन, व्हाइल द स्टेम इज नेगेटिव, ऑप्शन बी एंड डी आर आल्सो नेगेटिव। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो उसको हल नहीं कर पाएगा जी। अब ये फिर चला जाएगा गैसिंग के ऊपर। इस तरह नॉन ऑफ द अबव जो है उसको भी कोशिश करें कि ये वाली भी लीड इन स्टेटमेंट के अंदर यूज ना करें। ट्राई टू अवॉइड नॉन ऑफ द अबव। आप ये देखेंगे द फ्रेज नॉन ऑफ द अबव इज प्रॉब्लमेटिक इन आइटम्स वेयर जजमेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड वेयर द ऑप्शंस आर नॉट एब्सोल्युटली ट्रू और फॉल्स। Use of none of the above as true option may turn an item into true false item, and each option has to be evaluated as more or less true than the universe of unlist option है। इसकी एग्जांपल आके देते हैं, जैसे ये है chicken pox is caused by the same virus that causes herpes simplex, labialis, zoster, herpetic stomatitis, all of the above and none of the above। अब ऐसे आइटम के अंदर जब स्टूडेंट जो है वो ए और बी को ट्रू करेगा but has no idea about option C, so it is easy to figure out that the correct answer is D। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक टेस्ट वाइज स्टूडेंट ने फौरन पिक कर लिया है कि दो तो ऊपर ठीक हैं, तो फिर ये ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि अगर नॉन ऑफ द अबव है तो फिर दो ऊपर क्यों ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस जो है अवॉइड करने चाहिए इन दी मेकिंग एन एमसीक्यू। अब ये देखें वेरी ट्रिकी आइटम्स है, इसके अंदर भी बड़ी एक्सट्रेनियस डिटेल्स दी हुई हैं, अननेसेसरी हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया इसे। तो अब अगर आपने इसको 30 सेकंड में या 1 मिनट में टाइम दिया हुआ है तो इट विल टेक 3-4 मिनट्स इसको पढ़ने में और इसको इंटरप्रेट करने के अंदर बड़ा टाइम लगेगा जी। सो अगर आपने रखना भी है ये एमसीक्यूज तो आप एक आधा रखें जरूर, क्योंकि एक डिफिकल्ट भी होने चाहिए इस लेवल के। लेकिन आप अगर सारा टेस्ट ही ऐसे बेस कर लेंगे वो फिर जो उसके टेस्ट रिजल्ट है वो ठीक नहीं होंगे। So these are the general information about the MCQs। मैं अभी थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूंगा जी। आर यू with me please? The participants हैं। चलिए ये छोटा सा एक एक्सरसाइज है। You can have your pen and paper with you। ऑल दी पार्टिसिपेंट जितने भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, 11 पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग मी, एक पेन पकड़ लें और एक पेपर पकड़ लें। जी सर, वी हैव द पेन एंड पेपर। ओके, सो आप मैं स्क्रीन को मैं आपके सामने अब मैं करूंगा तो आप 1 to 10 जो है नंबर लिख लें। 1 to 10 जी लिख लिया आप लोगों ने जी? जी सर, यस सर लिख लिया। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ जी। आपने इन ऑप्शंस को पढ़ना है स्टेम को, और आपने ऑप्शंस को जो है वो क्लिक करना है, आगे लिख देना कौन सा ऑप्शन है, फिर हमको बाद में डिस्कस करेंगे।
So please jot down the number 1 to 8, not 1 to 10, sorry, 1 to 8 लिख लें आप. So ये इसका पहला है जी, स्टेम है और इसके आंसर्स पढ़ें. Anybody can read please? Any participant can read this? इसका जो है आइटम स्टेम रीड करें. So may I read, sir? जी पढ़ें जी पढ़ें. The usual function of grunge process is to remove number A, grunges, snorts, shrieks, groans. जी तो आप टिक कर दें, आपको जो भी समझ आती है. जी पढ़ें आगे. Anti-gratification occurs on spring mornings, on summer evening, provided there is no rain before dusk, on autumn afternoons, on winter nights. जी थर्ड. Monkeys suffer from pharyngitis because number A, their pads are always underdeveloped. Number B option, all their bridges are horizontal. C option, their curn pieces are usually imperfect. And D, none of their dringos can ever adopt. So we are going to the fourth MCQ. This is the fourth one. Please read this one. Number 4, non-responsive rattling is usually found in an A option, Bringle, B, Gentilupi, D, Acklaport. सर इसका तो डी आंसर होगा, सीधा साधा. जी let's move to the fifth one है जी. जी पढ़ें जी. Number 5, which are exceptions to the law of lymphicality? A option, the miltrip and the nuttercup. B option, the bifid pentrip. C option, the common coiter. D option, the flanged oozer. जी हो गया जी. नेक्स्ट पे जी. We are moving to the next option. Number 6, which must be present for babbling to take place? Option A, flow and rung, tube and ringe. सर ये जो थोड़ा सा सर प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है इन वर्ड्स में. चलिए आप जैसे भी है, जैसे आप इसको इंटरप्रेट कर लें, आप पढ़ लें, हम आप पे इसके नंबर नहीं काटेंगे, आप पढ़ लें ऐसे. ओके सर, ओके सर. नंबर डी, reunion track. Okay, I'm moving toward the seventh MCQ. Number 7, one is one common disorder of an overstretched occur pod is copious whistling, intermittent vagament, non-responsive rattling, uneven ejaculation. And now we are coming to the last MCQ. Number 8, which of these is the correct answer? A, B, C and D. चले, अब आपने जॉट डाउन कर लिया, लिख लिया है. लेट अस आप अपनी स्कोर जो है वो मुझे लिख चैट बॉक्स में लिख के भेज दें. अपने ना जो है ABCD करके ना चैट बॉक्स पे आप ये भेज दें जी कि आपने A को किसको टिक किया, B को क्या किया. लेट्स अस स्टार्ट विद द MCQ नंबर 1.
The usual function of grunge provokers is to remove. अब ये इसमें क्या है ये जो चीज स्टेम में है, don't include a word from the stem in one of the option, it will make people think of correct option. वही चीज आपकी, तो ये तो बड़ा इजी है, ठीक है जी। सो द टेस्ट वाइज स्टूडेंट जो है, आप माशाल्लाह सारे टेस्ट वाइज हैं आप, तो आपने ये ए को ही क्लिक किया होगा जी। क्लियर जी। नाउ लेट्स कम टू द एंड। एंटी ग्रेटिफिकेशन अकर्स ए बी सी डी। ये कह रहे हैं जी द ऑप्शन लुक्स मोर प्रोबेबल बिकॉज इट इज लॉन्गर एंड बिकॉज इट इज द ओनली वन विच इज क्वालिफाइड है। सो लॉन्ग ऑप्शन जो है वो भी टेस्ट वाइज स्टूडेंट पिक कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि मैंने कहा था यूजुअली, इधर ऑलवेज। तो अब वो कह रहा है जी कि डोंट मिक्स indefinite with definites. Indefinites are more likely to be correct. Indefinites are usually, sometime, often and seldom. And definites are all, never, none and so on. तो ये भी बाय डिफॉल्ट होता है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। तो आप ये देखें कि मैंने जब इनके रिसर्च आर्टिकल स्टडी किए, और मैंने जब इनके रिसर्च आर्टिकल्स को 10 सफ़े का एक रिसर्च आर्टिकल्स, आई वाज रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ये कितनी डेप्थ में जाके चीज़ों पे भी ये पिक करते हैं कि ये चीज़ें जो है ना, जो इनडेफिनेट्स हैं, ये भी जब इनके एनालिसिस किए जाते हैं एमसीक्यूज के, तो ये पॉजिटिवली टिक होते हैं डिस्ट्रैक्टर्स के अंदर या ऑप्शंस के अंदर। तो आप ये देखें कि इनके इतने स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर जो कि पूरा का पूरा एनालिसिस शीट निकाल के दे देती हैं एग्जाम के बाद, पोस्ट एग्जाम। मैं अब ये आपको तकरीबन 6-7 स्लाइड्स आइटम एनालिसिस के इसके बाद दिखाऊंगा कि आइटम एनालिसिस होता क्या है, और वो आपका एग्जाम सारा बेस्ड उस पर करता है, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस। ये कैसा एग्जाम था ये, और इसके रिजल्ट कैसे थे, और इसने कैसे डिस्क्रिमिनेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड कंटेंट ऑफ द करिकुलम। इसी तरह ये देखें, बड़ा इजी है इसके अंदर, इसमें यूज किया है आपके जो vowels हैं, don't allow the indefinite articles and to give away the right answer. It's very easy. ये आपने plural, singular and a and an को भी देखना आपने। Which are the exceptions to the law of long plicality जी। अब ये कहता है जी कि don't ask for something plural that then make just and one option plural है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है इसके अंदर के ऊपर आपने एक्सेप्शंस दी हुई हैं, और नीचे सिर्फ ए जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, बाकी सारे सिंगुलर फॉर्म के अंदर है। Which must be present for publishing to take place. आप ये देखें, ये कह रहा है it's not always this option, it can be any of them, one way of thinking about it. कि आपने बाकी जो सारे दिए हुए दो एक को आपने कर दिया सिंगल, तो कई दफा बाय डिफॉल्ट यही ठीक होता है, क्योंकि बाकी आप ज़हन में डिस्ट्रैक्टर्स बना रही होती हैं, तो जो एक वाला जो है, तो जो टेस्ट वाइज स्टूडेंट है उसी को टिक कर देगा। एंड दैट इज नॉट द आंसर बेस्ड ऑन नॉलेज, दैट इज द आंसर बेस्ड ऑन द फ्लॉ ऑन द आइटम एंड द टेस्ट वाइजनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड दैट disturbs the overall results of this exam. Anybody can identify the problem in this question number 7? आपने देखा नॉन, क्या लिखा, नॉन रिस्पॉन्सिव टाइटलिंग इज यूजुअली फाउंड इन। अब एन है ना सर, तो एन से ही पता चल रहा है कि एन तो नहीं, ये देखें, ये जो 7 क्वेश्चन और 4 है ना, ये वाला, इसके अंदर ये 4 जो है, इसके स्टेम में एक चीज आई हुई है। कई दफा इसी फ्लो के अंदर जब कई दफा क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसके ऑप्शंस के अंदर आगे आ जाती हैं चीजें, तो वहां से भी स्टूडेंट्स पिक कर लेते हैं। आप ऑप्शन तो स्टेम्स को अगले एमसीक्यूज के अंदर कोशिश करें बिल्कुल एक नए थीम के साथ आए। आप जब आप फ्लो ऑफ थीम्स के साथ चल रही हैं, तो वो चीजें रिपीट होने का खदशा होता है उसके अंदर, तो ट्राई टू अवॉइड। और अगर आपने करना भी है, तो फिर आप एमसीक्यूज के सीक्वेंसेस को चेंज करें। जैसे कि अगर आपने एक थीम और सब थीम के आपने 3 एमसीक्यूज बनाए हैं एक फ्लो में, तो उस फ्लो के अंदर आप उनके सीक्वेंसेस को चेंज करें इन दी टेस्ट, उसको नंबर 1 से 4 पे ले जाएं, 4 से 20 पे ले जाएं सेकंड क्वेश्चन को। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो उस फ्लो के अंदर से चीजों को निकाल नहीं पाता। अदरवाइज कई दफा बैक वाले पिछले वाले एमसीक्यूज के अंदर क्यों दिया होता है जो कि अगले वाले में आंसर हो रहा होता है, तो वहां से पिक कर लेता है। एंड लास्ट इज
सो देयर वाज अ पैटर्न डी, मैंने कहा ना कि डी जो है ना ये बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्शन आप बना के देखें, और इस वर्कशॉप के बाद तो नहीं, लेकिन पहले यही है कि मैं भी यही करता था कि जो मैंने पहले ऑप्शन डिस्ट्रैक्टर ए बी सी करने और डी और ई जो है जो एंड वाला उसको मैंने की कर देनी। तो जब मैंने 20-25 एमसीक्यूज बनाए तो मैं देखता कि मेरे मैक्सिमम डी जो है वो आ रहे हैं, की आ रही है। तो देन आई स्टार्टेड चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द ऑप्शंस एंड इसके अंदर मैं किसी को ए कर दो बी कर दो, बाय डिफॉल्ट डी आता है। डी को जो है जिनको कोई आंसर समझ नहीं आ रही होती तो वो डी को पिक कर देते। नो आई विल गो फॉर दिस आइटम एनालिसिस। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? No, sir. Thank you. Very well interpreted. Okay, let's come to the item analysis. This is मैं इसका जस्ट आपको फ्लेवर दूंगा कि जब आप MCQs का टेस्ट बना लेते हैं और स्टूडेंट्स उसको फॉर्म कर लेते हैं, then this is the duty of the university or a college to go for an item analysis. ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एग्जाम की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी इसी पे आप बेस कर रहे होते हैं। How your exam is valid and reliable, number one, and what is the strength of the MCQs, number two, and either you are going to repeat these MCQs in the next examination, or you're going to revise these MCQs in form of the analysis that this MCQ is a redundant, that has to be taken out. These are very difficult MCQs, not attempted by most of the students. These are very easy MCQs attempted by almost all the students. These MCQs are not discriminating. The distractors are plausible or implausible. We have sent back to the examiners. जी आपके जो 5 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन ऐसा है जिसको 100 में से 100 ने टिक किया और बाकी जो 4 ऑप्शन है वो 100 में से 100 ने उनको नहीं टिक किया। So the distractor index is 0. So you have to revisit these MCQs or we are going to take it out from the bank end. तो आइटम एनालिसिस के 3 components हैं. One is we call it difficult index, one is discrimination index, and the last is the distractor analysis or distractor index है. इसके साथ फिर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है चौथा, that is the reliability index है. तो टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं आइटम एनालिसिस के, which give you a holistic picture of the examination, जिसके ऊपर फिर आपके जो करिकुलम कमेटी के मेंबर्स होते हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर वो मीटिंग कॉल करती है कि इस एग्जाम के अंदर क्या फ्लॉस थे, क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी, क्या इसके अंदर कमियां कोताहियां थी जिसको हमने अब बेहतर करना है इन दी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है. सो लेट अस गो विद दिस प्रेजेंटेशन. सो टेस्ट स्कोर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू रियली न्यू. जो टेस्ट स्कोर है उसको तो ये होना चाहिए कि वो रियल पिक्चर दे कि किसको क्या आता है. अगर टेस्ट को रियल पिक्चर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा तो इसका मतलब है कि टेस्ट में प्रॉब्लम है. लाइक अगर उसमें एरर्स हैं तो आपका जो है वो टेस्ट को ट्रू पिक्चर नहीं देगा, वो एक इन्फ्लेटेड पिक्चर आएगी. जैसे कि हमारे जो है वो 96%, 98% वो जी बड़े अच्छे हमारे एमसीक्यूज है, हमारे बच्चे बड़े टॉप के, नहीं पता चला जी इतनी चीटिंग हो रही है और इतनी इजी एमसीक्यूज और इतने एक्सपोज्ड एमसीक्यूज हैं. तो दीज आर ऑल इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स, वो ट्रू पिक्चर नहीं दे रहे इस टेस्ट की. सो जैसे कि हमने कहा ना कि टेस्ट के अंदर एक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी होती है, तो हम इसके जो फंडामेंटल्स ऑफ आइटम एनालिसिस हैं वो है कि क्या ये टेस्ट इजी है या डिफिकल्ट है, इज इट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द नोअर्स एंड द नॉट नोअर्स, और दिस एग्जाम इज रिलायबल और नॉट रिलायबल. तो ये 3 आंसर्स हैं. इसके अंदर चौथी चीज है डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस की. ठीक है जी. तो टोटल देयर आर 4 areas which has to be done in exam analysis. One is how difficult or easy the test is it discriminating between knowers and non-knowers, or is this exam liable. So question is called an item. ठीक है जी. MCQs का जो एक क्वेश्चन है उसको हम आइटम बोलते हैं. So how many got answers correct? Too easy, all will get it correct,
or too difficult, majority will not answer the question. So check the effectiveness of the test item. So score the exam and sort the result by score. जो आपने एग्जाम ले लिया 100 MCQs का, उसके अंदर बचे थे 50, तो आपने क्या किया कि आपने select an equal number of students from each, and अब आप start कर दिया अपने exam analysis. आपने 25% from the upper 1/4 and 25% of the lower quartile bottom से आपने 25% स्टूडेंट ले लिए, यानी कि आपने उन 100 बच्चों में से आपने 25% अपर से और 25% जो लोअर स्कोर किया है उसको ले लिया. Now you compare the performance of these two groups on each of the test items. For any well-written item, a greater proportion of students in the upper group should have selected the correct answer. This is what we assume. And a greater portion of the students in the lower group should have selected each of the respective incorrect answer. अब ये देखें the percentage of student who answer the item correctly. This is item difficulty. अगर ये greater than 80% ने correct किया है, आंसर किया है, तो ये item जो है वो easy है. अगर ये 30 to 80% बच्चों ने correct किया है तो ये item moderate है, और अगर इसने less than 30% ने आंसर किया है तो ये item difficult है. So this is a scale of item difficulty जो कि हम इसकी percentage निकाल के इस scale को devise करते हैं. जैसे कि आप ये देखें जी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 है, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे हु आंसर्ड ईच आइटम इज 50 बच्चे थे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. 1 को 15% ने करेक्ट आंसर किया है, 2 को 25 ने, 3 को 35 ने और 4 को 45 ने करेक्ट किया है. अगर हम इसकी करेक्टनेस देखें तो जो 15% का मतलब है कि 30% करेक्टेड आंसर्स थे, तो डिफिकल्टी लेवल इसका हाई आया है. अगर हम सेकंड पे जाएं तो 50% ने करेक्ट किया है, इसका मॉडरेट मीडियम लेवल पे है. 35%, 70% ये मीडियम पे है, यानी कि अगर आप पिछले स्केल पे जाएं, और 45% का मतलब है कि 90% बच्चों ने ये एमसीक्यू करेक्ट किया है, तो ये तो बड़ा आसान एमसीक्यू है. सो फ्रॉम दिस यू डिटरमिन दी आइटम डिफिकल्टी लेवल. नोबडी फेल्ड. अगर कोई नहीं फेल हुआ इस आइटम में या इस एमसीक्यूज में, तो बड़ा ही आसान एमसीक्यू है. Nobody got 100, सारे फेल हो गए हैं, बहुत ही मुश्किल है, तो उसको तो निकालना चाहिए. So should item that are too easy or too difficult be thrown out? क्वेश्चन ये है कि हम ये या तो निकाल दें या फिर कुछ कंपोनेंट स्टार्ट में, एंड में, और हमने कितने % डिफिकल्ट रखना है. अगर हमने डिवाइस मैपिंग में किया हुआ है जी कि एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 20-25 तो हम हाई डिफिकल्टी लेवल के रखेंगे, तो फिर तो अगर वो उतने फ्रेम में आ रहे हैं तो दैट इज जस्टिफाइड एंड द वैलिड असेसमेंट टूल. लेकिन अगर सारे के सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट हमें रख दी है तो फिर दैट इज नॉट अ वैलिड एग्जामिनेशन टूल. निकालते कैसे हैं जी? ये प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट सेलेक्टिंग द राइट आंसर द आइटम है. डी इज द डिफिकल्टी फैक्टर, सी इज द नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर एंड एन इज द नंबर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स. रेंज इसकी 0 to 1 है. द हायर द डिफिकल्टी फैक्टर द इजियर द क्वेश्चन है. आप ये देखें जी कि अगर डिफिकल्टी फैक्टर इज रेंजिंग बिटवीन 0.3 and 0.7, तो ऑप्टिमम लेवल हम 0.5 लेते हैं. तो मास्टर द टॉपिक एरिया हाई डिफिकल्टी वैल्यू शुड बी एक्सेप्टेड. डी इज इक्वल टू सी बाय एन है जी. सो डिफिकल्टी फैक्टर अगर 1.8 है, 2 इजी है, 0.6 है, गुड है, 0.4 है, 0.5 है, तो जितना ही नीचे जाएगा ये इतना डिफिकल्ट होता जाएगा. सो आइटम नंबर 4 is 0.5 optimal and 0.6 is good. So item number 1 and 6 too easy and they are too difficult. Next thing is item discrimination. Generally, students who did well on the exam should select the correct answer to give any given item on the exam. So discrimination index का मतलब है it distinguishes between for each item between the performer students who did well on them and students who did poorly. ठीक है जी. तो अगर वो नहीं एग्जाम डिस्क्रिमिनेट कर रहा या वो आइटम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, तो हाउ डज इट वर्क्स? फॉर ईच आइटम सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लोअर ग्रुप व्हिच हु आंसर्स करेक्टली, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द अपर ग्रुप हु आंसर्स करेक्टली, डिवाइड द रिजल्ट बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट वन ग्रुप. सो द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स लिस्टेड इन डेसिमल फॉर्म दैट इज -1 and 1. मैं आगे आता हूं. अब ये देखें
कि ये एक इसका ग्राफ है, एंड इधर अगर जाएं 0 पे तो दैट इज हार्ड एग्जाम, इन बिटवीन इज नॉर्मल एंड दैट इज इजी। सो हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यूज आ रही हैं जब हम इसका लगाते हैं फार्मूला, तो अगर ये 1 के पास है तो इट इज वेरी गुड एग्जाम डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन गुड एंड बैड स्टूडेंट्स, और अगर ये 0 और से पीछे है तो इट इज नॉट अ गुड एग्जाम। इंटरप्रिटेशन क्या है? फॉर एग्जाम विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ए डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 0.3 to 0.6 या above जो है दैट इज गुड। वैल्यूज क्लोज टू 0 दैट दी मतलब परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स बराबर हैं, और द इंडेक्स दैट शो नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम है कि ये कहीं चीटिंग हुई है, या इसके अंदर टेस्ट वाइज स्टूडेंट्स के अंदर कोई इसमें लॉजिकल क्यूज थे, और इसलिए ये जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनसे भी ये हल नहीं हो सका, बिकॉज उन्होंने अपने नॉलेज बेस करना था, तो इसके अंदर क्यूज थे जो कि पिक हो गए, या आपको पता था जो बैड स्टूडेंट्स है या ये पेपर आउट था इस सेगमेंट के अंदर, तो दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन गुड एंड बैड स्टूडेंट्स। इस तरह निकालते कैसे हैं? a minus b divided by n, and a is the response frequency of higher group, b is the response frequency of the lower group, and n is the number of the respondents. So when we correlate the test taken performance on a single test item with the total score, it ranges from +1 to -1. Items which discriminate well are those which have difficulty index between 0.3 and 0.7. So अगर इस रेंज के दरमियान में आएंगे तो आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट है वो भी ठीक होगी। So negative or 0 means that the test taker who did well on the test missed the item, while those who did poorly got the item right. So इसमें मैंने कहा ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी है, या उनको ऑलरेडी इस आइटम का पहले से पता था, या चीटिंग करवाई गई है, या उसके अंदर फ्लॉस थे। So zero coefficient means that all the test taker got the item correct or incorrect है, या तो बहुत ही आसान था वो, उसमें कोई फायदा ही नहीं है, तो क्या डिस्क्रिमिनेट करना उसने, कोई है ही आसान है वो, या इतना मुश्किल था कि वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा, सारों ने गलत किया है, सारों ने इसको उसके आंसर नहीं दिए। सो वो भी हमें पता चल गया कि ये भी क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट है, तो इससे तो हम डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकते। चले अगर कोई 10 बच्चों ने भी कर दिया, 20 ने कर दिया, तो फिर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकल रहा है इसका। So 0 and negatives are questionable items which has to be keenly seen by the examiners and the supervisors, revisit करें उसे, उसके कंटेंट को revisit करें और उसके कंस्ट्रक्ट को revisit करें। So the discrimination index steps जो है वो आप इसके अंदर 25 ले लें या 27% ले लें, और इसका इंडेक्स वो a minus b डिवाइड पर n निकलता है। तो अब ये देखिए जी कि आइटम नंबर आपने निकालना है कि अपर क्वार्टल के बच्चे जो है उन्होंने नंबर 1 90% ठीक किए और 20% ठीक किए उन्होंने, और इस तरह अब जाएं इस ग्राफ को देखें, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 है। ये इसकी परसेंटेज है। तो अब इसका जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकल रहा है वो 0.7% है। अब आप जो नीचे आएंगे देखिए 6 में 20 एंड 60 है, तो मैं नीचे जाता हूँ तो ये -4 में चला गया है। वो बच्चे जो लायक थे उन्होंने इस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं किया, और वो जो नालायक थे उन्होंने 60% करेक्ट किया। इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या 5th पे चले जाए तो ये 50-50 आ रहा है, या 4 पे आ जाए तो 100-100 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है या ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसको रिविजिट करने की जरूरत है। इसी तरह द थर्ड थिंग अबाउट द आइटम एनालिसिस इज दैट इज द रिलायबिलिटी इंडेक्स। अब इसके 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, दैट इज द क्यूडर रिचर्डसन 20, क्यूडर रिचर्डसन 21, एंड जो हम यूज करते हैं दैट इज द क्रॉनबेक अल्फा जो है। तो इसका मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर ये जो है वो इट आल्सो रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, तो अगर इसकी रेंज जो है वो आ रही है इन बिटवीन गुड विद डिफिकल्टी इंडेक्स, अ गुड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एंड विद अ गुड रिलायबिलिटी इंडेक्स 0.5 से ऊपर है, तो दिस इज अ गुड एग्जाम, इसको टेकअप किया जा सकता है। और अगर ये आप देखें कि अगर आइटम नंबर 1 जो है उसकी डिफिकल्टी इंडेक्स 0.28 आई है, और डिस्क्रिमिनेशन 0.4 आई है, रिलायबिलिटी 0.8 आई है, तो इट्स अ गुड आइटम। इट्स अ डिफिकल्ट आइटम relatively, it's discriminating with the students and it's have good reliability index. नंबर 4 पे जाए तो दिस डिफिकल्टी इंडेक्स उसका 0.1 पे है,
और डिस्क्रिमिनेशन माइनस पे चला गया है और लायबिलिटी इंडेक्स और नीचे चला गया है, तो दिस आइटम इज नॉट गुड, दिस हैज टू बी रीविजिटेड। इस तरह आप एग्जाम के पूरा जो उसका MCQs का पेपर है या SCQs का पेपर है, आप इन 4 एरियाज के ऊपर एग्जाम का एनालिसिस करते हैं और फिर अपनी एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके फिर करिकुलम कमेटी एंड एग्जामिनर्स कमेटी के पास लेके जाते हैं और फिर उसके बाद एक रिव्यू होता है, पोस्ट एग्जामिनेशन रिव्यू। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में होता है और जिसकी वजह से आपका जो एक्रेडिटेशन है इन योर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वो जो है आपको दी जाती है। यही चीज़ें चेक करते हैं कि इनके पास अपना एग्जाम एनालिसिस डिपार्टमेंट है, अगर है तो कैसे करता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और कौन कौन से ये मटेरियल्स यूज़ करता है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस के बाद, क्या ये स्टैंडर्ड सेटिंग करते हैं या नहीं करते, क्या इन्होंने इस एग्जामिनेशन के बाद अपने अगले एग्जाम की स्टैंडर्ड सेटिंग की है। जैसे कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, स्टूडेंट्स इनके अभी लोअर कॉग्निटिव लेवल पे थे, तो इन्होंने इसको सामने रख के कि अगले एग्जाम की जो अपनी हायर पासिंग परसेंटेज थी वो 90 से 60 पे लेके आए कि नहीं आए, कीपिंग रिव्यू द लास्ट 3-4 एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग, कीपिंग रिव्यू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें जो है आपके इंस्पेक्टर्स आके चेक करते हैं टू गिव यू certificate of accreditation and to certificate of your standardization and certificate of your standards of ISO and of Baldrige medical education certification. So any question till now ji about item analysis and about MCQs and about the characteristics of a good examination? I have a meeting in the secretariat and I requested your organizers to spare me at 11 o'clock, and I hope this short discussion would have added value in your knowledge. And I have shared my email with the organizers and my telephone number. Any of the participants can directly contact me or can email me, and you can get, you want any learning material or you can want any help regarding the assessment in item analysis, in MCQs development, in OSCE development, in online assessment, and how to counter with the element of cheating. So I'm there to help you anytime. So thank you very much, and I am open for question and just 10-15 minutes for question answer session. Any question, I am here to answer, and the organizer, WhatsApp, anything you want further for this? Thank you, sir. The session was very informative, and I hope participants also gain knowledge. And I want to express my gratitude to all the participants. And any questions participants want to ask to sir, you can ask right now. Otherwise, inshallah ta'ala, we'll meet in the next session. Will be conducted on tomorrow. Thank you very much, sir. Thanks a lot. It's very informative. Okay. Thank you, sir. So thank you very much, and I have shared my email address with the organizer and even my telephone address. Any participant who need any help regarding medical education, regarding your thesis, regarding anything regarding medical education, my emails and my number is open for you. So thank you very much once again. Please play my thanks to Professor Junaid Sarfraz, who invited me in this workshop, and hopefully this workshop would have definitely added value to your knowledge. And once again, I thank you very much to all the participants. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Thank you, sir.